Okay, so before starting with the chapter, actually chapter is already started. What was the name of the chapter? Yes, very good. This chapter is based on the fundamental rights, duties, and directive principles of the state policy. How many fundamental rights are given to us as citizens? Yes, there are six fundamental rights, out of which five are the most important rights. And in case if anybody disallows you to enjoy these five rights, then you can take the support of the sixth right, and that sixth right is to get justice from the constitution. It is known as the right to constitutional remedies. ये सिक्स राइट आप तभी यूज कर सकते हो जब आपको कंप्लेन करना होता है कि आपको अगले फाइव में से कोई एक राइट नहीं मिल रहा है. एंड आई थिंक आई एम वेरी क्लियर. यस. ओके. फंडामेंटल. यस, फंडामेंटल ड्यूटीज देयर आर 11, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. एंड द डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, डायरेक्टिव पॉलिसीज, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. इसके लिए वन वर्ड मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए. व्हाट आर दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? Rudra, sit properly. Yes, directive principles means the guidelines which are given to the state government which they can use in case they are confused during making the laws. Okay, वापस जाते फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें वी लर्न अबाउट राइट ऑफ इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम. आई थिंक इक्वालिटी और फ्रीडम दोनों हो गए थे. फ्रीडम का फर्स्ट पैराग्राफ हुआ था आई थिंक. यस. और राइट टू फ्रीडम, आपको कौन कौन से फ्रीडम मिलते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू कॉल मीटिंग्स पब्लिकली, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस और एसोसिएशंस और ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, फ्रीडम टू फ्रीली मूव इन द कंट्री. आप कहीं पर भी इंडिया में जा सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, कहीं पर भी सेटल हो सकते हो. एंड यू ऑल्सो हैव अ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी वर्क यू वांट टू डू. आप कोई भी काम कर सकते हो, हाँ, इलीगल नहीं होना चाहिए. राइट टू फ्रीडम में 6 नंबर में लिखा है कि आई कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो मैं स्मगलिंग का काम करूंगा, तो दैट इज नॉट अलाउड. ओके, बट otherwise you have the full freedom to select the profession of your choice. So these are the 6 different freedoms which we have already learned. Now we are going to continue from the next paragraph. You all should be on page 66 of the textbook, and keep a pencil in your hand so that we can underline the hard words and the important points. Shall we start, all of you? Okay. These rights are of most importance for the overall development of personality and expressions of Indian citizens for harmonious working of democracy. Harmonious means overall working. पूरा country overall develop हो सकता है if these 6 rights or these 6 freedoms are given to a citizen. Okay, underline the word harmonious, meaning overall. We are on the second paragraph of right to freedom on page 66. Harmonious meaning overall. It is important for the overall working of the democracy and a healthy lifestyle. Any individual cannot exercise this freedom autonomously or irresponsibility. Autonomously मतलब anyhow, जैसे तैसे आप यूज नहीं कर सकते हो. ओके, देर आर पर्टिकुलर वेज ऑफ एंजॉइंग द राइट. जैसे अभी मैंने बताया कि यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लासरूम में आप बीच बीच में अपना बैकग्राउंड म्यूजिक देते रहोगे, बोल बोल करते रहोगे. नो, इररिस्पॉन्सिबली नहीं, ऑटोनॉमसली नहीं. अंडरलाइन द वर्ड ऑटोनॉमसली, मीनिंग एनी हाउ. या फिर आप लिख सकते हो केयरलेसली. ऑटोनॉमस का और एक मीनिंग है केयरलेसली. फिर आपको पॉइंट नंबर 2 में दिया है
that you can move freely throughout the territory of India. इंडिया में आप कहीं पर भी घूम सकते हो. तो इसका मतलब नहीं कि किसी के घर में घुसकर वहां आटे मारने लगे. I have right to move anywhere. No. Then अभी जो हमने बात किया, you can choose the occupation of your own. तो स्मगलिंग या किडनैपिंग का काम नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है? साहिल, साहिल, इस तरफ बेटा. हाँ, that is better. Okay, so any individual cannot exercise these freedoms autonomously, that is carelessly or irresponsibly. आपको responsibility के साथ rights को enjoy करना है. The state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare, peace and security of the society. अगर आपको बोला जाता है कि you can move freely in the Indian territory, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कोई भी हॉस्पिटल में जाके आटा मारने लगो. हमारा कोई क्लास चल रहा है ऑफलाइन सपोज, और वहां पर कोई बच्चे आ गए और फुटबॉल खेलने लगे बाहर के सामने की सोसाइटी वाले. वाई? वी हैव द राइट टू मूव फ्रीली इन इंडिया. तो यहाँ पर द स्टेट कैन कंट्रोल एंड लिमिट दिस राइट. कहीं पर भी घुस के आप कुछ भी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस राइट. I hope you can understand, all of you. Mufaddal. This has been clearly mentioned in the constitution. उसमें लिखा है, it has been stated in the constitution how the rights are exercised. Rights तो है, लेकिन कैसे enjoy करोगे वो भी आपको पता होना चाहिए. Clear? Indian citizens have been given the freedom of speech and expression. मतलब कहीं पर भी जाके कुछ भी बोलने लगोगे, no. This can be expressed either orally, verbally and through gestures. Gestures जिसका मीनिंग है इशारा. आप अपना राइट है वो जेस्चर्स के थ्रू भी कर सकते हो, बट that does not provide exercising these rights in an unlimited and unrestrained manner. Unrestrained means limitless. रात को 2-2:30 बजे माइक लेकर रोड पे निकल गए गाना गाते गाते. I have right to speech. मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. I can express anything. No. Rights have certain limitations also. ये जो लिखा है ना, this can be expressed either orally, verbally, through gestures, but that does not provide exercising the rights in unlimited manner. उसकी भी कोई लिमिट होती है. जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्यों? I have right to freedom. No. I have right freedom of speech. नहीं. They have some limits also. समझ में आ रहा है ना बात, all of you? Yes. Certain necessary control and limitation have been stated in the constitution. Mufaddal. The state can put required control through law and order for maintaining the unity and integrity of India, safety of the state, for amicable relation. Amicable means friendly relations. Underline the word amicable and write the meaning friendly relations. या close relations भी लिख सकते हो as you wish. Friendly or close relations with the foreign countries, public management and public peace, compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, defamation. ये सभी जो चीजें हैं, देखो ये सेंटेंस वापस से पढ़ती हूं मैं. सेफ्टी ऑफ द स्टेट, अगर ये आप फ्रीडम ऑफ स्पीच इस तरह से यूज करते हो कि स्टेट की सेफ्टी नहीं है, या फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन नेशंस ब्रेक हो रहे हैं, पब्लिक मैनेजमेंट का मिसयूज हो रहा है, पब्लिक पीस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रात को 3 बजे आप स्पीकर लेकर रोड पे नहीं घूम सकते. ओके, पब्लिक पीस, कॉम्प्रोमाइज एंड सेफ्टी, जो सेफ्टी के अगेंस्ट है. हॉस्पिटल में जाके जहां पर हार्ट पेशेंट्स एडमिटेड है और वहां से जोर जोर से चिल्लाने लगोगे तो इट इज नॉट सेफ्टी ऑफ द पीपल. मोरलिटी, आई थिंक यू नो व्हाट आर मोरल वैल्यूज. एथिक्स जैसा कुछ होता है, डिसिप्लिन जैसा कुछ होता है, दैट शुड बी फॉलोड. ओके, क्रिशन मुफद्दल. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफेमेशन. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफेमेशन मतलब कोर्ट का इंसल्ट करना. ओके, कोर्ट का कोई भी लॉ है या कोई भी वर्डिक्ट है या उनका कोई भी डिसीजन है जिसको आप नहीं मानते, तो दैट इज नोन एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफेमेशन.
and provoking violence for crime. Provoking means supporting. Underline the word provoking and write the meaning supporting. Violence तो शायद आपको पता है कि नहीं है? क्या पता है? वायलेंस मीनिंग यस, मारा मारी तोड़ फोड़, ऐसा कुछ भी आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो. Right? It is the authority of the judiciary. What does judiciary do? Yes, it punishes the people who breaks the laws. Dhruv, I cannot see you. So it is the authority of judiciary whether these many limitations are appropriate or inappropriate. अगर judiciary चाहे तो इससे और stricter rules भी बना सकती है. Okay? The purpose behind the freedom of press through which ideas and opinions put forth for public welfare has been separately mentioned. It can be included in the right to expression. जैसे आपको पता है कि मीडिया में न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो आप लोग, न्यूज चैनल्स देखते हो, मैसेजेस मोबाइल में देखते हो, जिसमें आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि गवर्नमेंट में के अगेंस्ट में वो लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, है ना. तो इसका मतलब ये नहीं कि दे आर ब्रेकिंग द रूल्स, दे हैव द राइट टू एक्सप्रेशन. न्यूज चैनल में जब बहुत बार वो क्रिटिक्स आते हैं और गवर्नमेंट के बारे में बुरा बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो उनको ये राइट मिला है, उनको ये एक्सप्रेशन मिला है, राइट टू एक्सप्रेशन, दैट दे कैन इन्फॉर्म द पब्लिक. वो लोग इससे हमें इन्फॉर्म करते हैं दैट हाउ इज द गवर्नमेंट वर्किंग. गवर्नमेंट की बुराई नहीं करते, बट दे गिव यू द डिप्लोमेटिक गिव यू इन द डिप्लोमेटिक मैनर हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में हमको पता चले कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है ना? ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ. द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2009. व्हाट इज दिस अमेंडमेंट? हमने मीनिंग लिखा था शायद. अमेंडमेंट मीनिंग किसी को नहीं पता? Amendment meaning changes. Underline the word amendment and write the meaning changes. I cannot see Yuvraj and Krisha. Underline the word amendment and write the meaning changes. तो 2009 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज हुआ था. जो लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं, वन ऑफ द लॉज वर चेंज्ड. एंड व्हाट वाज इट? द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2009 in Constitution of India confers means gives. Underline the word confers and write the meaning gives free and compulsory primary education for the children between 6 to 14 years. ये हमने पहले भी पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में, अगर आपको याद है तो. If you are between the age of 6 to 14 years, then you get free education and it is compulsory unless and until you turn up to 14 years. If a person is not convicted for a crime, then he cannot be sentenced to punishment or more punishment than the one prescribed by the law. Suppose if a person is not convicted for a crime, convicted means proved. Underline the word convicted and write the meaning proved. अब आपको पता है कि अपने मूवीज में, वीडियोस में देखा होगा कि कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं. वो वाला सीन देखा है आपने? साक्षी, सुशांत, राइट? उसमें क्या होता है कि एक इंसान जो है वो कल्प्रिट होता है, क्रिमिनल होता है, लेकिन जब तक जज अनाउंस ना कर दे कि ये पर्टिकुलर पर्सन क्रिमिनल है, तब तक वो क्रिमिनल माना नहीं जाएगा, अनलेस एंड अनटिल एवरीथिंग इज प्रूव्ड. समझ में आ रहा है? उसने क्राइम किया है, उसका केस चल रहा है, लेकिन जब तक केस का वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तब तक वो प्रूव नहीं बोल सकते कि ये क्रिमिनल है. तो रीड द सेंटेंस. इफ अ पर्सन इज नॉट प्रूव्ड फॉर अ क्राइम,
then he cannot be sentenced to punishment. तब तक उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते आप. और more punishment than the one prescribed by the law. जेल में रख सकते हो सेफ्टी पर्पस के लिए, लेकिन उसके ऊपर और कोई पनिशमेंट आप डाल नहीं सकते. Cannot be given the punishment more than once. Cannot be given to the same convicted person. एक इंसान का अगर प्रूफ हो गया है that he has done a crime, तो वापस उसको कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है. क्राइम किया है, ये क्राइम है, ये पनिशमेंट है, डन. हाँ, if you are not satisfied in the court, then you can take him to the higher level courts. That is different. कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टेट कोर्ट में ले गए, हाई कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट में. बट व्हेन द crime is proved, then he cannot be convicted every now and then. समझ में आ रहा है all of you? मुफद्दल, वंश. No individual can be deprived of his life and liberty. Deprived means refused. अब उसकी लाइफ, इसकी प्रॉपर्टी को रिफ्यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ. हाँ, लॉफुली अगर गलत किया है तो डिफरेंट थिंग. नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट. अगर मूवीज में आपने देखा है तो किसी को अरेस्ट करने से पहले वारंट दिखाते हैं कि ये आपका अरेस्ट वारंट एंड वी विल अरेस्ट यू. ये देखा है आपने मूवीज में? यस. तो इसका मतलब अगर आपके पास वारंट नहीं है, प्रूफ नहीं है, अगर मेरे सपोज मैं पुलिस हूं और मेरे सामने ही ये मुफद्दल ने किसी का खून कर लिया, तो इवन दो आई एम अ पुलिस, मैं मुफद्दल को पकड़ के नहीं ले जा सकती. व्हाई? बिकॉज आई डोंट हैव एन अरेस्ट वारंट. हाँ, सेफ्टी पर्पस के लिए उसको मैं कस्टडी में रख सकती हूँ, बट अरेस्ट नहीं कर सकती. देयर ऑलवेज शुड बी अ ग्राउंड, अ रीजन फॉर अरेस्टिंग एनीबडी. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? इफ अरेस्टेड, चलो अभी अगर मैंने अरेस्ट कर भी लिया, इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज और हर चॉइस. मैंने अरेस्ट वारंट दिखा दिया, मुफद्दल को जेल में डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मुफद्दल क्रिमिनल है. मुफद्दल हैज द राइट टू हायर अ लॉयर, फिर वो लॉयर उसके फेवर में केस फाइट करेगा एंड उसके बाद if it is proved, then only he will be a criminal. Otherwise, if not proved, he will be freed again. वापस जाके दूसरा खून भी कर सकता है. ओके, मुफद्दल ध्यान रखना बेटा. चलो, let's continue. An arrested person has to be brought before the nearest magistrate. Magistrate मतलब वो जो लोकल कोर्ट होता है वो. Within 24 hours. मुफद्दल को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, फिर नेक्स्ट वीक कोर्ट में ले जाऊंगी, नहीं. जस्ट विद इन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट कोर्ट में ले जाना पड़ेगा. अजीज बहुत खुश हो रहा है मुफद्दल को जेल में डाल रही हूं तो. अजीज, कोई पर्सनल दुश्मनी है तुम्हारी मुफद्दल के साथ? जितनी बार मैंने मुफद्दल को अरेस्ट किया ये अजीज खुश हो रहा है, बोलो. और रुद्र तो बैठे बैठे खाना खा रहा है. चलो लेट्स कंटिन्यू. हाँ, कहाँ पढ़ते हैं? Yes, an arrested person has to be brought before the nearest magistrate within 24 hours without the permission. ये खास रीड करना. Without the permission, no individual can be kept in custody more than 24 hours. अगर मैंने मुफद्दल को 24 आवर्स से ज्यादा जेल में रखा विदाउट टेकिंग हिम टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, देन आई एम एट फॉल्ट. मेरे सामने भी एक्शंस लिए जा सकते हैं. Am I very clear, students? Okay. As per the Prohibition Act, the person under arrest will not be applicable to the aforesaid matters. अगर पहले से अरेस्ट किया हुआ है, पहले से उसके नाम पे एक क्राइम बोल रहा है और दूसरा क्राइम पता चल जाता है, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है कि मुझे छोड़ दो, 24 आवर्स हो गए. तुम्हारा तो पहले का भी हिसाब बाकी चल रहा है. समझ में आ रहा है? So, if a person is already convicted and if he is already in jail, so this rule does not apply under right to freedom. Am I very clear, all of you?
Okay, now before starting with the next paragraph, I will take your attendance first. अभी मेरे पास शीट नहीं है तो मुझे इसमें से ही लेना पड़ेगा. When I speak out your name, just say loudly present or absent. Absent हो तो भी बोल देना, ठीक है? Okay, चलो let's continue. प्रिवेंटिव डिटेंशन. ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन. अभी हमने क्या बात किया? दैट वंस इफ अ क्राइम इज प्रूव्ड देन ओनली यू कैन अरेस्ट अ पर्सन, देन ओनली यू कैन पनिश अ पर्सन. ओके, नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज मुझे ऐसा पता चला कि रुद्र के पास बॉम्ब है और वो कल स्कूल असेंबली में बॉम्ब फोड़ने वाला है, ठीक है? तो मैं इन्फॉर्म करूंगी कि रुद्र बॉम्ब फोड़ने वाला है, कितने लोग चले जाएंगे ऊपर, कि रुद्र स्टाफ रूम में बॉम्ब फोड़ने वाला है ना, स्टाफ रूम इज द बेस्ट प्लेस. तो अभी आप लोग क्या बोलोगे कि मैडम प्रूफ चाहिए. तो प्रूफ क्या? वो बॉम्ब फोड़े फिर आप उसको अरेस्ट करोगे, और आपको लगता है कि बॉम्ब फोड़ने के बाद वो खड़ा रहेगा कि चलो प्रूव हो गया, मुझे पकड़ लो. समझ में आ रही बात? राइट? So sometimes what happens that you know that the crime is going to happen, but you cannot wait for the crime to happen. कि क्राइम हो जाए, उसका प्रूफ मिल जाए, उसका अरेस्ट वारंट बन जाए, फिर मैं उसको अरेस्ट करूंगी. तब तक तो कितने लोग ऊपर चले जाएंगे, राइट? तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन. कि मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि रुद्र कल स्कूल आने वाला है, स्टाफ रूम में बॉम्ब फोड़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, फॉर प्रिवेंशन पर्पस रुद्र विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द स्कूल बिफोर फुल्ली चेकिंग. उसको पूरा चेक करेंगे, उसका बैग चेक करेंगे, अगर वो स्कूटी लेकर आए तो उसकी डिक्की चेक करेंगे, सब कुछ चेक करके फिर अगर लगा तो ही रुद्र अंदर जाएगा, वरना उसको अरेस्ट कर देंगे हम, है ना? तो when you arrest a person without any proof or without any arrest warrant, but if you think that this person is something wrong, कुछ गड़बड़ है इंसान में, और उस बेसिस पर there is the provision that you can arrest the person. इस क्लॉज को या इस प्रोविजन को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन. समझ में आ रही? जैसे आपको पता है कि आज तो बारिश हुई नहीं है, फिर भी छुट्टी रखी है. क्यों? क्योंकि इट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. हो सकता है आप स्कूल पहुंचो और कल के जैसे पानी भर जाए यहाँ गले तक, तो वापस घर पे कैसे जाओगे, है ना? और आप लोगों को पूरा दिन स्कूल में तो हम संभाल नहीं सकते. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन टुडे इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम. समझ में आ रहा है? पहले से, बिकॉज देर आर चांसेस दैट द वेदर माइट गेट वर्स. समझ में आ गया ये पॉइंट प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला, ऑल ऑफ यू? ओके, तो रीडिंग हम करेंगे कल. एक्सप्लेनेशन वॉज मोर इम्पोर्टेंट.